Dear students, welcome to the class of International Business. I am Rachit Ranjan, your instructor for the subject. This subject is specially designed for the students who are studying in MBA second year, third semester course. We all know that international trade and commerce has been done since time immemorial. Even the Indus Valley civilization people traded with Mesopotamian and Egyptian civilization. And even in today's world also, no country or no organization can hope to be economic powerhouse without doing business internationally. Hence, it becomes very important for the business students such as you to be conversant in the basics of international business. Companies have to export, they have to import, so that financial transactions takes place in different currencies. Even selling the product in different country, they have to use different strategies. Even operational issues are different for different countries. So whether you are specializing in finance or marketing or operations, the study of IB is very, very crucial. Now we have divided your syllabus in 4 modules, and this will help you to understand and strengthen your knowledge and concepts of international business. From one module to another module, we will be studying, and so that your concept will build up, and by the time you complete your 4th module, your basic knowledge as a post-graduation students who have studied international business will be very good. So let's begin. And first of all, we will begin with the topic of syllabus. As I have told you, there are 4 modules of 4 units in which your syllabus has been divided. The first module basically deals with introduction to international business. In introduction to international business, we'll be seeing the meaning, the nature, the significance, and the drivers of international business. Who are the players who are involved in international business? MNCs, how they benefit the home country and host country, the globalization, the concept of globalization, what are the strategies in globalization, and challenges of international business. In module 2, we will deal with different kind of theories which have been propounded from time to time and which have been used for conducting international business. The theories like mercantilism, absolute advantage theory, the product life cycle theory of international business. We will be studying all these theories, all important theories. Now, we will also study in module 2 the instruments of trade policies like tariffs, subsidies, which are very crucial and which often act as a accelerator or a restrictor for conduction of international business. In module 3, we will study about and we will know about different international institutions or world bodies which have been conducting or which have been very helpful in smooth conduction of international business. The bodies like WTO, IMF, they have played a very crucial role in smooth functioning of international business in present world. In 4th unit, basically we will study about world market environment and foreign market entry strategies. We will study what are the international dimensions of marketing, what is international marketing, what is the difference between domestic and international marketing. We will study the process of internationalization. We will study about different kind of factors like political factor, cultural factor, which actually help in or which are the important factors due to which affect the international business. We will also study about different kind of modes or entry strategies by which international business can take place, like export, import, joint ventures, using which we actually conduct our international business. So let's begin with module 1. Module 1 has these topics which are listed below. Module 1 is basically introduction to international business, meaning of international business, nature of international business, significance of international business, drivers of international business, players who are involved in international business, MNC benefits,
and problems to host and home country, globalization and strategies in globalization, challenges of international business, right? So first we'll understand the meaning of international business. International business is basically the business being conducted internationally in very simple and plain words. But what is business? Business is simply an organized effort and activities of individual or a group to produce and sell goods and services for profit, right? So basically, when we talk about international business, we can say that any activity by an individual or a group by which he sells his goods or services for the motive of profit is known as business. And when this business is conducted internationally, that is outside the boundary of the country, then that becomes international business, right? To make the definition more professional, we can state that all commercial activities like sales, investment, and transportation that take place between private entity or government bodies based in two or more different countries, okay, is known as international business. Say, for example, a government body or a private body, either of them can conduct business, right? It's not only that private company will only conduct business and government body does not conduct business. So any private body or government body will conduct business, and business entails what? It entails the commercial activities like sales, investment, transportation, and it takes place between two private bodies, or it takes between two government bodies, or it takes between a government body and a private body, which are located or placed in two different international geographic regions, right? So such kind of commercial activity, whenever is conducted in two different geographies, international boundaries, then that becomes international business. Now, mostly the private companies have this motive of profit making, right? The international business, whenever a private body conducts, a private body or private company conducts the business, their motive is basically profit earning. But the government body, whenever it conducts international business, their motive is not only profit making. Profit making is generally a secondary motive. Their motive is generally a long-term strategic and for strategic reasons. Say, for example, a government of India, when it builds or set up the plant through its PSU, NTPC in Bangladesh or Nepal or Sri Lanka, then government of India is not only eyeing the profit from its by setting up the plant in Bangladesh or Sri Lanka, but it also eyeing the strategic alliances for security reasons with Sri Lanka or Bangladesh or any other international country. ONGC Videsh Limited, they have also have their plant in Kazakhstan and Mozambique, and similarly other countries, right? So government bodies also conduct international business, and private bodies obviously conduct international business. Now come to the topic of nature of international business. तो जब भी हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस का स्वभाव क्या है, ठीक है? क्या वो कॉम्प्लेक्स है, क्या वो इजी है? तो सबसे पहला जो हम लोग को पॉइंट देखना है वो है कि इंटरनेशनल बिजनेस जनरली लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, ठीक है? लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, फिर इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करता है, फिर जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, वो सभी के लिए फायदेमंद होता है. इट बेनिफिट्स ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. इंटरनेशनल बिजनेस जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा ही डोमिनेट किया जाता है, उनका मेजर से होता है उसमें. इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से किया जाता है, और इंटरनेशनल बिजनेस क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया जा रहा होता है, इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस का जो नेचर होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है. यानी किसी भी फैक्टर में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इंटरनेशनल बिजनेस पे उसका लार्ज इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? लार्ज स्केल ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है?
देखिए इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो टू डिफरेंट कंट्रीज या टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज में किया जा रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल चेन्नई में हो रहा है और उसको एक्सपोर्ट हम यूरोप के किसी कंट्री में कर रहे हैं, तो उसको जो ट्रांसपोर्ट करने का तरीका जो है आइदर थ्रू लैंड रूट होगा और सी रूट होता है। सी रूट ही मेजर तरीका होता है जिसके थ्रू जो है हम लोग ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो अब जब हम चेन्नई से जो है यूरोप के किसी कंट्री में जो है सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना लार्ज स्केल पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। ठीक है, फिर आप जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मनी का ट्रांजैक्शन भी होता है। अब किस करेंसी में होगा, यूरोप की करेंसी में होगा कि इंडिया की करेंसी में होगा, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या है भाई, इंडिया में जो है अलग तरीके से जो है पब्लिक को सेलिंग की जाती है, यूरोप में हो सकता है अलग तरीके से की जाती हो। तो आप देख सकते हैं, और फिर एचआर में जो है वहाँ पे अलग पॉलिसी होगा कंपनसेशन का, यूरोप में और इंडिया में अलग कंपनसेशन रूल्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब भी दो डिफरेंट ज्योग्राफीज में जो है इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, तो चाहे एचआर का फंक्शन हो, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे ऑपरेशंस का हो, हमको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इश्यूज और बहुत लार्ज स्केल पे जो है चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है, उसके हिसाब से ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए लार्ज स्केल ऑपरेशंस होता है। सिमिलरली जब कंपनी जो है बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ जो है अपना ट्रेड करता है, तो उसमें डिमांड जब ज़्यादा होता है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी होता है, और ग्लोबल डिमांड को मीट करना होता है, तो उसमें भी लार्ज स्केल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है ग्लोबल डिमांड अकम्पनीड बाय कस्टमाइज रिक्वायरमेंट। हर कंट्री की और हर रीजन की अपनी अपनी जो है कस्टमाइज रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको भी पूरा करने के लिए कंपनीज को जो है तैयार रहना पड़ता है, और इसलिए भी जो है हमारा ऑपरेशन जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे हो जाता है जब हम इंटरनेशनली डील करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, कोई भी कंपनी होती है, दे वांट टू रिड्यूस देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात आती है तो कंपनी क्या करती है भाई, क्यों रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होता है? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इसलिए होता है क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो कॉस्ट कम करने के उसके पास तरीके हैं, ये रॉ मटेरियल जो है वो चीप और अच्छा यूज करे। उसको जो है जिस कंट्री में जो है वो कंपनी है, हो सकता है कि वहाँ से उसको वो प्रोडक्ट जो है सस्ते में ना मिल रहा हो, और जो है जिन टैलेंट्स को और जिन एचआर रिसोर्स जो उसके होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होंगे, हो सकता है वो भी जो है उसको उस पर्टिकुलर कंट्री में कॉस्टली मिल रहा हो। जैसे यूएस में जो अगर आप रॉ मटेरियल सोर्स करेंगे यूएस से, कोई कंपनी यूएस की है और उसको जो है रॉ मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो यूएस से अगर मैन्युफैक्चर करे, यूएस से जो सोर्स करेगा तो उसको जो है महंगा पड़ेगा। सिमिलरली जो उसके जो है टेक्निकल हैंड होगा वो भी यूएस में कॉस्टली पड़ता है। तो वो कंपनी क्या करती है कि इंडिया से, चाइना से जो अपने टेक्निकल हैंड हायर करती है, और एशिया की अदर कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज से जो है रॉ मटेरियल सोर्स करती है। तो उससे जो उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट और एचआर कॉस्ट जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे जो है अपने ग्रोथ के लिए डिपेंड करने लगती है, तो इससे इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी होती है। फिर हम लोग आ जाते हैं बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का मतलब क्या होता है? जो भी कंट्री जो है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप कंट्री हो, उसमें दोनों का ही फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है एक कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, या जो है कंपनी है गूगल, अगर वो इंडिया में अपना प्लांट लगाता है, इंडिया में अपने जो है फैक्ट्री लगाता है, या इंडिया में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी इंडियंस के लिए। तो इस तरीके से वो इंडिया को बेनिफिट कर रहा है। मगर वो उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको जो है यहाँ पे चीप रिसोर्स मिलेगा, उसको जो है रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा, तो उससे जो है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि जब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो अपना जो है प्रॉफिट का लार्ज हिस्सा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है लगा सकता है। उससे उसका जो है टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगा, उसके प्रोडक्ट्स और अच्छे होंगे, उसकी और सेलिंग होगी। तो इस तरीके से जो है जब वो लार्ज प्रॉफिट कमाएगा तो उसकी जो होम कंट्री है उसको ज़्यादा टैक्स दे सकता है। तो इस तरीके से जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है और जो होस्ट कंट्री है, दो होस्ट और होम कंट्री जो भी है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, उन दोनों को ही फायदा होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनेटेड बाय डेवलप कंट्रीज। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं, ये ग्राफ जो है मैंने लिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है बॉडी है, उसकी एक रिपोर्ट आती है की स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये 2018 की रिपोर्ट है। 2018 की रिपोर्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो डार्क
डार्क ब्लू रंग का जो है बार है वो लार्ज है, और लाइट ब्लू और बाकी जो कलर्स हैं वो जो है बहुत कम है। तो एक्सपोर्ट का सेक्शन देख लीजिए और इंपोर्ट का, जो एक्सपोर्ट का बार है, इंपोर्ट का बार है, उसमें जो है डेवलप कंट्रीज का ही प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा है। ये 2005 का है। फिर 2016 में जब आप जाएंगे तो भी आपको डेवलप कंट्रीज का ही प्रपोर्शन ज़्यादा दिखाई देगा, और 2017 में जाएंगे तो भी आपको डेवलप कंट्रीज का ही प्रपोर्शन ज़्यादा दिखेगा। तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी यही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज के केस में भी आपको यही दिखेगा। तो चाहे एक्सपोर्ट की बात हो चाहे इंपोर्ट की बात हो, आप देखेंगे कि वहाँ पे हमेशा जो प्रपोर्शन है, जो डोमिनेंस है, वो डेवलप कंट्रीज का ही ज़्यादा है। ठीक है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट के केस में आप देख सकते हैं कि लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी जो है डेवलप कंट्रीज में जो कंपनीज होती हैं या डेवलप कंट्रीज होती हैं उनमें होती है। वो लोग लो कॉस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनका सप्लाई चेन नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड होती है, तो ईजिली वो वर्ल्ड मार्केट जो है इंटरनेशनल बिजनेस का वो कैप्चर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस, तो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे ट्रेड ब्लॉक्स। ट्रेड ब्लॉक्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कि 2-3 कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है आपस में जो है डील कर लिया कि हम जो है जब आपस में ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, तो हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, मगर कोई और थर्ड पार्टी जब हमसे बिजनेस करेगी तो हम उस पर डबल ट्रिपल टैक्स लगाएंगे या ड्यूटी लगाएंगे। तो इस तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूके और यूके और यूएस आपस में डील कर लेते हैं कि हम लोग यूके और यूएस में जब कोई बिजनेस होगा तो हम जो है अपने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, और हमारी कंपनी दूसरे कंट्री में जब जाएगी तो अपने प्रोडक्ट्स को आराम से सेल कर सकती है। वही अगर इंडिया की मान लीजिए टाटा है या रिलायंस है या विप्रो है, जब अपना प्रोडक्ट को यूएस ले जाती है तो उस पर डबल ट्रिपल टैक्स लगा दिया जाता है। ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेड ब्लॉक। नाउ टैरिफ बैरियर, तो ट्रेड ब्लॉक जो है, इसके बाद हम टैरिफ बैरियर पे आते हैं। तो जब ट्रेड ब्लॉक बनता है तो उसी का परिणाम होता है कि जो टैरिफ बैरियर्स भी अलग अलग कंट्रीज लगाती हैं। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि जो है हमने कोई इन्वायरमेंटल नॉर्म्स लगा दिए, ठीक है, हम जो है मॉनेटरी टर्म्स में कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बट हमने ये बता दिया कि हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो इतना हाई है। जैसे कि मैंगो जो है अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके में, तो यूके ने अगर नॉन टैरिफ बैरियर लगाना होगा यूके को, तो कहेगा कि जो है भाई इसमें ये वाले बैक्टीरिया, इसमें जो है ये वाले जो है आपने जो है पेस्टिसाइड यूज़ किया है, ये नहीं यूज़ किया है, और एकदम हर्बल चाहिए, तो वो सब नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कल्चरल इश्यूज होते हैं। ठीक है। दीज थिंग्स आर हार्मफुल टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसको भी हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो जो है इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल होता है। फिर इंटरनेशनल बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है हाई रिस्क और हाई रिटर्न। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें रिस्क भी बहुत होते हैं कि कब किस कंट्री में कौन से लॉ चेंज हो जाए, कब वो कंट्री हॉस्टाइल हो। जैसे फॉर एग्जांपल सडनली जो है इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन लेता है कि जो है उसको चाइनीज ऐप्स बंद करने हैं, टिकटॉक बंद करना है। ठीक है। तो जो है अचानक एकदम से जो है टिकटॉक का जो है मार्केट शेयर गिर जाता है, उसकी जो है पूरी प्रॉफिट्स पे जो है ह्यूज इम्पैक्ट होता है। तो चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक अगर जो है इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो फिर जो है जाहिर सी बात है उसको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो जब हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है। तो अगर उसने ये रिस्क लिया, तो जब तक जो है वो रिस्क जो है पॉजिटिव सेंस में है, जब तक वो जो है रिस्क नहीं अकर कर रहा है, तब तक जो है वो कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे प्रॉफिट भी अर्न करती हैं, क्योंकि उनका मार्केट बेस बहुत लार्ज हो जाता है। ठीक है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, इंटरनेशनल बिजनेस जो किया जाता है वो मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस पे किया जाता है। International business is based on market segmentation on the basis of geographic segmentation of the consumers. The market is divided into different groups according to demands of the consumers in different countries. और ये मार्केट सेगमेंटेशन करने के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानने के बाद हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सेंसिटिव नेचर, क्योंकि जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है जो मार्केट है वो बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो, चाहे टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से चेंज होती है वर्ल्ड में। तो इन वजहों से भी जो है अगर जो है कोई सडन चेंज होता है तो उससे जो इंटरनेशनल बिजनेस दूसरी कंपनी का इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी बात है, मान लीजिए कि कोडैक जो है एक कैमरा कंपनी थी, फिल्म बनाती थी। तो अचानक से जैसी जो है डिजिटल
कैमरेज का इन्वेंशन होता है तो कोडैक का पूरा बिजनेस ही डाउन हो जाता है। सिमिलरली सीडी बिजनेस, तो सीडी जो है पूरे वर्ल्ड ओवर में बिक रही थी बहुत लार्ज स्केल पे, लेकिन जो है जब पेन ड्राइव्स का और जो छोटे यूएसबी ड्राइव्स का जो है इन्वेंशन होता है तो फिर जो है पूरे सीडी मार्केट जो पूरे वर्ल्ड ओवर में जिन कंपनीज ने फैला रखा था उनका बिजनेस एकदम से डाउन हो जाता है। तो बहुत सारे जो है सेंसिटिव होता है इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये सारे के सारे जो है नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का पॉइंट्स आपको पता चल गए कि क्या क्या नेचर होता है। लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज होता है, बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होता है, डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन होता है और सेंसिटिव नेचर होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो इसको हमने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक, हाउ डज द स्टडी ऑफ आईबी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाउ इज द स्टडी ऑफ आईबी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ डज आईबी बेनिफिट द कंपनीज, द इंटरनेशनल बिजनेस बेनिफिट द कंपनीज। तो हाउ इज द स्टडी ऑफ आईबी इंपॉर्टेंट, ठीक, आईबी की स्टडी जो हम लोग करते हैं तो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले है कि मोस्ट कंपनीज आइदर आर इंटरनेशनल और दे कम्पीट विद इंटरनेशनल कंपनीज। और आज की डेट में हम देखते हैं कि कंपनीज या तो खुद इंटरनेशनली वर्क कर रही होती हैं या तो अगर वो लोकली भी होती हैं तो इंटरनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट से तो कम्पीट कर ही रही होती हैं। तो हम जब तक जो है स्टडी नहीं करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की, तब तक कैसे कॉम्पीट करना है उनके साथ, और अगर इंटरनेशनल जोन में हम फंक्शन कर रहे हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको ये पता लगना कि जो है इंटरनेशनल बिजनेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सारी बातें हमको समझ में आती हैं, सारी स्ट्रेटजी समझ में आती हैं, ताकि हम अपने मार्केट में जो है अपना जो है पोजीशन बना सकें और इंटरनेशनल कंपनी से कॉम्पीट कर सकें। तो नेक्स्ट है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन में भी डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज डोमेस्टिकली। तो हमको मोड्स ऑफ ऑपरेशन भी इंटरनेशनल बिजनेस से पता, इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करने से ये पता लगता है कि किस किस तरीके से मोड्स जो होते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, चाहे वो इम्पोर्ट का हो, चाहे जॉइंट वेंचर हो, चाहे आपका जो लाइसेंसिंग हो, इस तरीके डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं हम जो है जिसके थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस में वर्क करते हैं, और वो एकदम ड्रास्टिकली अपोजिट होता है जिससे हम डोमेस्टिकली वर्क करते हैं। तो अगर हमको इंटरनेशनली ऑपरेट करना होता है तो हमको इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द बेस्ट वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस में डिफर कंट्री बाय कंट्री। तो हम लोग जो है इंटरनेशनल बिजनेस में कंट्री बाय कंट्री भी जो है स्टडी करते हैं, ताकि जैसे कि हमको अगर जो है पता करना है कि हमको चाइना में कैसे बिजनेस करना है, वहाँ पे कम्युनिस्ट रिजीम है, और यूएस में कैसे बिजनेस करना है, वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी है। तो उस तरीके से हम लोग दो डिफरेंट रिजीम में हमको बिजनेस करना है, दोनों इकोनॉमिक पावर हाउस हैं, दोनों अलग अलग जगह पे बिजनेस करने के लिए तरीके अलग अलग होते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई जो है हमको इसमें भी हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करते हैं तो फिर हमको वास्ट स्केल पे पता चलता है, इंटरनेशनली हम तैयार होते हैं अपने आप को जो है एज एन एम्प्लॉय प्रोजेक्ट करने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू मेक बेटर करियर डिसीजंस। फिर अगर हम जो है किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं और वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में अपना जो है सहयोग देना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई हमको जो है हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, हेल्प्स यू टू डिसाइड व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज टू सपोर्ट एंड व्हाट टू नॉट सपोर्ट, और इसमें आप कंपनी की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज आईबी बेनिफिट द कंपनीज। तो कंपनी आईबी जो इंटरनेशनल बिजनेस कंपनीज को कैसे बेनिफिट करता है, तो मार्केट एक्सपेंशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, कॉस्ट एडवांटेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इकोनॉमिक रिसेशन इन वंस ओन कंट्री, लॉस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट शेयर, ग्रोथ इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और परचेजिंग पावर। तो आइए इन पॉइंट्स को जो है हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। मार्केट एक्सपेंशन, तो हम सभी को जो है बहुत चाह होती है कि हम लोग जो है अपनी कंपनी को जो है अच्छे से जो है एक्सपैंड करें, मार्केट एक्सपैंड करें। तो जब हम डोमेस्टिकली जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास और हमको जो ये लगता है कि डोमेस्टिकली हम काफ़ी एक्सपैंड कर चुके हैं, तो हम अब मार्केट को हम बाहर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो हमको न्यू मार्केट की अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, तो मार्केट एक्सपेंशन, everyone wants to expand their market share and to sell more and more products. The importance of international business lies in the fact that you get a new market to enter and to expand. बहुत इजीली आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, तो जब मेजर क्या होता है कि जो है कोई प्रोडक्ट अगर जो है किसी मार्केट में नहीं अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली
कि अगर हम जो है बात करें कि जो है किसी प्रोडक्ट की, जैसे मान लीजिए कि हम योगा को जो है योगा को एक प्रोडक्ट माने, और मान लेते हैं कि ये यूरोप में और जो है यूएस में नहीं अवेलेबल था ये प्रोडक्ट, ठीक है, और एज एन इंडिविजुअल और एज अ कंपनी आई वांट टू मार्केट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अ मेजर एडवांटेज द कंपनी कैन हैव इज दैट द प्रोडक्ट इज is not available in the international market which the company is targeting। तो अगर मेरी कंपनी जो है हेल्थ सेक्टर में है और वो टारगेट कर रही है यूएस और यूके को, ठीक है, और वहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा योगा का नहीं अवेलेबल है, तो हम जो है प्रोडक्ट एडवांटेज यूज़ करते हुए इस प्रोडक्ट को जो है इंटरनेशनल सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल बिजनेस का। कॉस्ट एडवांटेज, so many times there is cost advantage of exporting products to different countries. The cost advantage is apparent in the way that China is operating in today's business environment. The benefit of international business are huge to China because their production is very low. तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि अगर हम प्रोडक्ट को जो है चीप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो और उसको जो है बहुत ही सस्ते दामों पे जो है इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, लार्ज स्केल पे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो अगर हम जो है किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम आवर ओन कंट्री, देन वी कैन ईजिली एक्सपैंड इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, और अपने जिस भी कस्टमर कंट्री को हमने टारगेट किया हुआ है उस कंट्री में हम जाके उस प्रोडक्ट को जो है उसके हिसाब से अगर हम जो है डिफरेंशिएट करके सेल कर सकते हैं तो वो भी जो है हमारे लिए इंटरनेशनल बिजनेस जो है वहाँ पे हेल्पफुल होता है। इंटरनेशनल बिजनेस हमारे लिए वहाँ भी फ़ायदे करता है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया के केस में अगर हम एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि इंडिया में रिसेशन है और इंडिया में प्रोडक्ट्स की सेलिंग नहीं हो पा रही है, और हम किसी अफ्रीकन मार्केट में या किसी यूरोपियन मार्केट में जो है अपने प्रोडक्ट्स का जो है स्कोप देखते हैं कि वहाँ पे उसकी डिमांड हो सकती है, तो फिर हम जो है इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करते हैं और जो है अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट मार्केट्स में सेल करते हैं ताकि हमारे कंपनी की जो है सेल्स जो है बनी रहे, उसके प्रॉफिट बने रहे, और हमारी इकोनॉमी में अगर रिसेशन आया हुआ है तो भी जो है हमारी कंपनी को जो है इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक रिसेशन एक कंट्री में आया हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम दूसरी कंट्री में अगर बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो हम जो है इसको जो है कॉम्पनसेट कर सकते हैं, इस लॉस को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ इन डिमांड इन अदर मार्केट्स। तो as demand rises in new market like erstwhile cut off African countries, the growth in demand automatically attracts new companies। तो जैसे बहुत सारी जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि अब धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं और उनको जो है बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हो रही है, तो अगर जो है उन कंपनीज़ को जो है उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हो रही है और जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से उन प्रोडक्ट्स को जो लेना चाहती हैं तो वो एक कंपनीज़ को जो है अपॉर्चुनिटी अच्छी देता है ताकि वो उस मार्केट में सेल कर सके। तो इस तरीके से ग्रोथ इन डिमांड जब आती है डिफरेंट मार्केट से तो वहाँ भी जो है हमें इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस प्रोडक्शन, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नोकिया का। तो अगर मान लीजिए कि जो है नोकिया ने अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी हैं और उसकी जो फैक्ट्रीज हैं वो इतना प्रोडक्शन कर रही है कि डोमेस्टिक डिमांड तो फुलफिल हो ही रही है, मगर उसकी जो मशीन्स हैं वो इतनी और मोबाइल्स प्रोड्यूस कर पा रही हैं कि जो है डोमेस्टिक डिमांड के अलावा उसको जो है बाहर भी जो है वो सेल कर सकता है, यानी कि एक्सेस कैपेसिटी जो उसने प्रोड्यूस कर दी है। तो वो भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनल बिजनेस उसकी एक्सेस कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए एक क्रूड एग्जांपल कि अगर आपकी कंपनी है वो 100 मोबाइल प्रोड्यूस कर सकती है और जिस रीजन में आप सेल कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 90 की डिमांड है, तो 90 तो हो गया, लेकिन 10 का जो है एक्सेस जो है आपने प्रोड्यूस किया हुआ है उसको जो है आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस ही एक तरीका है जिसके थ्रू जो है वो एक्सेस कैपेसिटी एब्जॉर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि व्हेन वी आर talking of operations and growth, one factor which helps the profitability of company to great extent is economies of scale. IB helps in large scale exports, so economies of scale comes into picture, which further reduces cost and increase profit. इसका मतलब ये होता है कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो आपका जो है पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, तो जब पर यूनिट कॉस्ट कम होता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है।
लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो के फ़ायदा क्या है अगर जो है उसको खरीदने वाला नहीं है। तो इंटरनेशनल बिजनेस ही एक तरीका है जिसके थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जो आपने जो जनरेट किया है उसको आप बाहर मार्केट में बेच सकें और जो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो भी जो है एक फैक्टर होता है जो जिसके थ्रू जो है हम जो है इंटरनेशनल बिजनेस जो है हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी हमको हेल्प करता है। फिर जो है इंटरनेशनल बिजनेस कहाँ पे जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब किसी कंट्री की जो है परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वहाँ पे जो है बाहर के प्रोडक्ट्स की भी जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसी जगह पे भी जो हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है सेल करने में हमको जो है लार्ज मार्केट अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो है हमें इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दुबई एक ऐसा रीजन है जिसको काफ़ी जो है सालों से जो उसकी जो परचेजिंग पावर जो वहाँ के लोगों की रही है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो जो है डिफरेंट जगह से डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे जो है लॉन्च किया है और उसको सेल करने की कोशिश की है। तो ऑल दैट हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हमने ये देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जो है कंपनीज के लिए क्या होता है। हमको मार्केट एक्सपेंशन में हेल्प होती है। अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है किसी नए मार्केट में तो वहाँ पे जो है हम इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू जो है सेल कर सकते हैं। कॉस्ट एडवांटेज जो है इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर है तो उसके थ्रू भी जो है इंटरनेशनल बिजनेस हमें हेल्पफुल होता है। इकोनॉमिक रिसेशन अगर आया हुआ है तो भी इंटरनेशनल बिजनेस हमें हेल्प करता है दूसरी कंट्री में सेल करने में। लॉस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट अगर हो रहा है हमको तो वहाँ भी हेल्प करता है हमको। ग्रोथ अगर दूसरी मार्केट में अगर जो है जैसे अफ्रीकन मार्केट का एग्जांपल हमने दिया तो वहाँ भी हेल्प करता है हमको। एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ भी इंटरनेशनल बिजनेस हमको हेल्प करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और परचेजिंग पावर, ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ भी जो है हमको इंटरनेशनल बिजनेस बहुत हेल्प करता है। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आज हमने आज के लेक्चर में देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है और पॉइंट्स पे डील करेंगे। तो आज के लिए जो है हमने देखा मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।